Good morning, students. Myself, Major Komal Katyal, Department of Zoology, GK Gowani Government College, Bhinmal. We were discussing about the basis for classification and in which I have just told you regarding the presence or absence of coelom. Now let us discuss about the role of embryogeny and segmentation in the classification. Now in my last lecture I told you regarding the protostome and deuterostome and their development. Protostome is a term which is derived from two words. Proto means primary, stoma means mouth. It means those animals in which mouth develops before the development of the anus and the blastopore develops into the mouth. Deuterostomes are those animals in which blastopore develops into anus and the development of anus precedes the development of the stoma or mouth. Now the cleavage. अब हम बात करते हैं विदलन के बारे में. In the protostome development, the cleavage is always spiral and determinate. जो प्रोटोस्टोम जंतु हैं उनके अंदर विदलन कैसा होता है? सर्पिल और निर्धारी होता है. मतलब कि बहुत प्रारंभिक अवस्था के अंदर, भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में ही यह निर्धारित हो जाता है कि कौन सी कोशिका से किस अंग का या किस अंग तंत्र का निर्माण होगा. In the case of deuterostome, the cleavage is radial and indeterminate. जो ड्यूट्रोस्टोम जंतु हैं उनके अंदर विदलन कैसा होता है? अरीय और अनिर्धारित प्रकार का होता है. मतलब भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में ये नहीं पता लगा सकते कि जो भ्रूण है का कौन सा भाग कौन सी कोशिका या कौन से अंग या अंग तंत्र का निर्माण करेगा. Now this you can see here. In general, here you can see the 8-cell stage of protostome development, which is in the case of mollusk, annelid and arthropod. In the case of deuterostome development, you can see the example of echinoderm. The 8-cell stage is there. So this is regarding the cleavage. Now about the coelom. In the protostome development, the splitting of the initially solid masses of mesoderm to form the coelomic cavity is called schizocoelous development. It means the solid mass of mesoderm split and it ultimately forms the coelom or the coelomic cavity. कहने का मतलब यह है कि मीसोडर्म के जो स्तर हैं उनके अंदर विपाटन होता है और उसके पश्चात एक देह गुहा का निर्माण होता है और यह देह गुहा चारों तरफ से मीसोडर्म द्वारा आश्रित रहती है. इनको हम बोलते हैं दीर्ण गुहिक परिवर्धन और जो देह गुहा बनती है वो कहलाती है दीर्ण गुहा. In the case of deuterostome development, there is formation of body cavity and it is antrocoelous development. Antrocoelous development, it means, as you can see here, it develops from the two out pouches or out pockets which originate from the gut, the primitive gut, that is the archenteron. जो आंत्रगुहिक है, आंत्रगुहिक के अंदर क्या होता है कि जो प्राथमिक गट या आहार नाल होती है उससे दो आउट पाउचेस निकलते हैं, मतलब ग्रोथ होती है और ये जो पॉकेट्स बनते हैं ये पॉकेट्स धीरे धीरे बढ़कर सीलोम या देह गुहा का निर्माण करते हैं जो कि आंत्र के चारों तरफ बनते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं आंत्रगुहिक. सो द सीलोम formation begins in the gastrula stage. In the protostome, it is schizocoelous. In the case of deuterostome, it is develops from the archenteron and it is antrocoelous. Now
द फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर, जो कोरक रंध्र है उसका भविष्य। इन प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट द ब्लास्टोपोर becomes the mouth, as I told you in the first slide. In the deuterostome, the blastopore becomes the anus. As you can see, in the first case, the mouth develops from the blastopore. In the second case, the anus is developing from the blastopore. दो तरह का यहाँ पर कोरक रंध्र का भविष्य निर्धारित हो रहा है। प्रोटोस्टोम के अंदर कोरक रंध्र से मुख का निर्माण होता है और ड्यूट्रोस्टोम के अंदर कोरक रंध्र से गुदा का निर्माण होता है और उसके जस्ट विपरीत दिशा में मुख का निर्माण होता है, चाहे प्रोटोस्टोम हो चाहे ड्यूट्रोस्टोम हो। दिस इज द कंपैरिजन व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड। फर्स्ट द कंपैरिजन ऑफ क्लीवेज, सेकंड द कंपैरिजन ऑफ सीलोम एंड थर्ड द कंपैरिजन ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अभी हमने जो 3 स्लाइड में देखा, पूर्व में एक प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम में किस प्रकार विदलन में परिवर्तन होता है, एक के अंदर सर्पिल और निर्धारी, दूसरे के अंदर अरीय व अनिर्धारी। सीलोम एक के अंदर दीर्घगुहिक, दूसरे के अंदर आंतरगुहिक। और जो कोरक रंध्र है प्रोटोस्टोम के अंदर वो मुख का निर्माण करता है और जो ड्यूट्रोस्टोम है उसके अंदर वो गुदा का निर्माण करता है। प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु, और जबकि ड्यूट्रोस्टोम में आते हैं इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा संघ के जंतु। नाउ रिगार्डिंग द मेटामेरिज्म एंड सूडो मेटामेरिज्म, अब हम बात करते हैं विखंडी भवन और कूट विखंडी भवन के बारे में। ये कंपैरिजन है between the metamerism and pseudometamerism. The true body segmentation is known as metamerism. What is false segmentation is known as pseudometamerism. The segmentation is visible both when the body is divided internally or externally, while segmentation is only external. Segments are fused and cannot be separated on will. Segments are loosely bound and can be separated on will. Most distinctive in annelids and also seen in arthropods and some chordate, segments are called tegma. Proglottids of tapeworm are there which can be separated at will. जो वास्तविक खंडी भवन है उसके अंदर आंतरिक और बाह्य खंडी भवन दिखाई देता है। जो खंड है वो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता, और इस तरह का खंडी भवन आपको आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के अंदर भी दिखाई देता है, जबकि सबसे अधिक आपको किस में दिखाई देगा, संघ एनेलिडा के जंतुओं में, जैसा केचुए में हम देख सकते हैं। जो कूट विखंडी भवन है उसके अंदर केवल बाह्य रूप से ही आपको खंडी भवन दिखाई देता है, और इसमें जो खंड है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत लूजली अटैच रहते हैं और एट विल इनको आवश्यकता अनुसार जंतु क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, जैसा कि चपटे कृमि के अंदर होता है। और सेगमेंट की जगह हम इसके लिए शब्द जो प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रोग्लोटिड। So in the case of annelid we use the metameric segments, the word, while in the case of Platyhelminthes, the tapeworm, we use the word proglottid. Now the metamerism and tegmentization. What is metamerism? It is a segmental arrangement of the body parts in an animal. It influences every aspect of annelid structure and function, and it is the compartmentalization of the body which resulted in each segment having its own excretory, nervous and circulatory structure. The specialization of body regions in a metameric animal, and then although it is the best developed in arthropods, some annelids also display tegmatization. Greek word tegma means the arrangement. कहने का मतलब यह है विखंडी भवन आपको एनेलिडा संघ के जंतु और इससे ऊपर जो अकशेरुक जंतु हैं, विशेषकर
आर्थ्रोपोडा संघ में उनमें आपको दिखाई देता है। शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कक्षों का निर्माण हो रहा है और हर जो खंड है उसका अपना एक उत्सर्जी तंत्रिका और रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंग या उसकी भाग पाए जाते हैं। जो विखंडी भवन युक्त जंतु हैं उनके अंदर जो शरीर के भाग हैं उनके अंदर भी आपको विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि यह टेगमेटाइजेशन जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर विकसित होता है, पर जो संघ एनेलिडा के जंतु हैं वो भी टेगमेटाइजेशन दर्शाते हैं। टेग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। So this is all about the lecture on embryogeny and segmentation. It is also the main basis of classification. As I told you, the animal can be divided into metamerically segmented animals, the higher non-chordates, which mostly includes the Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata, but segmentation is very clear in Annelids and Arthropoda. And then you can observe in the muscles of the chordates, while the pseudo-metamerism, which is the false segmentation, you can easily observe in the flatworms like Taenia solium and Taenia saginata, means those flatworms which belongs to class Cestoda. तो जो चपटे क्रमी है, चपटे क्रमी में भी विशेष रूप से जो वर्ग सेस्टोडा के जंतु हैं जिसमें टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा आते हैं, उनके अंदर आपको कूट विखंडी भवन दिखाई देता है। और जो वास्तविक खंडी भवन है उससे अलग करने के लिए यहाँ पर हम सेगमेंट न कह के उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं प्रोग्लोटिड। और ये जो प्रोग्लोटिड है, इन प्रोग्लोटिड की जो उम्र है वो उम्र हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसा कि फीता क्रमी के अंदर हम शरीर को 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, एक उसका मुख जो स्कॉलेक्स वाला भाग, एक ग्रीवा गर्दन वाला भाग और एक उसका ट्रंक वाला भाग। जो नए खंड है, नए खंड उसमें क्या होते हैं, स्कॉलेक्स के बिल्कुल पास में होते हैं और जो ओल्डेस्ट है वो बिल्कुल टेल वाले भाग पर होता है। और जो अंतिम 200 से 300 खंड है वो एपोलिसिस द्वारा शरीर से तोड़ के उनको जो मानव की विष्ठा है उसके साथ बाहर निष्कासित किया जा सकता है। जबकि जो वास्तविक खंडी भवन जैसे एनेलिडा संघ के जंतु जैसे केंचुए, जोंक इनमें पाया जाता है, उनमें लगभग सभी खंडों की जो उम्र है वो समान होती है। पर फिर भी हम देखें तो जो पूंछ वाला भाग है वहां पर जो खंड होते हैं वो ज़्यादा नए होते हैं और जो शीर्ष के नज़दीक खंड होते हैं उनकी उम्र अपेक्षाकृत अधिक होती है। So this completes my lecture on basis of classification, the segmentation and the embryogeny part. Thank you once again.